Students, now we start with exercise 3.3, which is based on the properties of kinds of quadrilaters. So far, we have done properties of trapezium, kite, and parallelogram. So we apply those properties to solve the questions of this exercise 3.3. So let's start. So as per the question number 1, given a parallelogram ABCD, हमें given दिया हुआ है, it is a parallelogram ABCD whose diagonals intersect at O. So we have to find out that we have to fill these blanks. AD is equal to dash. बट आपने बताना कि AD किसके इक्वल है, अगर है तो वो क्यों है. सो वी हैव टू गिव रीजंस ऑल्सो. सो लुक एट द फिगर. बेटा हमने कल प्रॉपर्टी की थी दैट इन अ पैरेललोग्राम, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC. बट जस्ट डोंट राइट, डोंट फिल द ब्लैंक, यू हैव टू गिव रीजन ऑल्सो. तो क्या रीजन होगा कि इन parallelogram opposite sides are equal. Okay, now so बेटा जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की, हमें उनको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट पार्ट है एंगल DCB इज इक्वल टू व्हाट. अब लुक एट दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B. सो व्हाट इज एंगल DCB? दिस एंगल. अब ये एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? दिस वन. सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB. रीजन वही दैट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट angles are equal. Third, OC. This is OC. यह है O, यह है C. OC हो गया ये पोर्शन. अब हमने देखना है कि ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है. सो बेटा we have one more property of parallelogram, that is the diagonals of a parallelogram bisect each other. ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब OC किसके इक्वल हो जाएगा? OA के इक्वल हो जाएगा. OC इज इक्वल टू OA. वैसे ही अगर आपसे पूछा होता कि बताओ ये OB किसके इक्वल है, तो क्या बोलते हैं आप? OD के इक्वल. क्योंकि क्या रीजन है? इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स bisects each other. Bisects each other. I hope you all understand this. बेटा देखो, इस एक्सरसाइज को आप तभी कर पाओगे if you remember all the properties of the quadrilaterals such as parallelograms, trapezium, kite, square, rectangle, rhombus. So now fourth part, M angle DAB plus M angle CDA. अब what is the meaning of this M? M means measure of angle. अब look at the figure. DAB कौन सा है? This is DAB. ये एंगल हो गया DAB. CDA ये एंगल हो गया. तो बेटा अगर आपको याद होगा शायद, तो कल हमने जो प्रॉपर्टी की थी पैरेललोग्राम्स की, तो उसमें हमने क्या किया था कि हर पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स, मतलब जो साथ वाले होंगे, दैट इज दिस प्लस दिस ले लो, या दिस प्लस दिस ले लो, या ये एंगल और ये एंगल ले लो, या ये एंगल और ये एंगल ले लो, इन दोनों का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज अगेन द प्रॉपर्टी दैट इन parallelogram
the sum of adjacent angles is always equal to 180 degree. I hope students you understand this. So बेटा आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद रखनी है, then only you are able to solve. Got it? Question number second. In parallelogram ABCD, we have to find value of x, y and z. Here angle B is given to us. So how to start? Beta, we know the property, this one, that is any two adjacent angles have sum equal to 180 degree. Now since in parallelogram sum of adjacent angles is equal to 180 degree, it means angle B plus angle C, angle B plus angle C must be equal to 180 degree. So therefore angle B is 100 degree, angle C is x is equal to 180. So what is the value of x? 180 minus 100 degree, which is 80 degree. ये आ गया. अब ये भी निकल गया आपको. अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा? That is the main property of parallelogram, that is opposite angles of parallelograms are always equal. ये हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा? सेम 100. ये हमने अभी निकाला, तो ये कितना हो जाएगा? सेम 100. नो, ऑल्सो opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles equal होते हैं, understand? So therefore angle y किसके इक्वल हो जाएगा? 100 degree. Why? Because angle D is equal to angle B. So angle D y था, ये 100 है, ये आ गया. And similarly angle C angle A के इक्वल है. Angle C is equal to angle A. क्यों? Same property. Because opposite angles of a parallelogram are equal. So what is angle C? X. What is angle A? Z. अब x की वैल्यू क्या है? हमने अभी फाइंड की थी 80 डिग्री. सो इट मीन्स z कितना आ गया? 80 डिग्री. तो स्टूडेंट्स इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y and z. So in this way, by using the properties of parallelogram, we can find the values of x, y and z. In parallelogram ABCD, एंगल डी इज गिवन टू अस. देखो बेटा, हमें अपनी तरफ से अल्फाबेट से उसको शो करना है, सो दैट वी कैन राइट द एंगल्स प्रॉपरली. इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी. अब बेटा ये एंगल दिया हमें 50. आप y और x निकाल सकते हैं. कैसे? सेम प्रॉपर्टी, that is the sum of adjacent angles of a parallelogram are always 180 degree. तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. आप चाहो तो ये भी ले लो, दिस प्लस दिस, मर्जी है, कोई भी दो लेने आपने. दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम have sum 180 degree. So put the values. A is x, D is 50 degree, is equal to 180 degree. So what is x? 180 minus 50, that is 130 degree. So x की वैल्यू आ गई. अब अगर x 130 है तो z y कितना होगा? सेम, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट एंगल्स. ऑल्सो angle A is equal to angle C.
because opposite angles of a parallelogram. Beta, this is the symbolic way to write the parallelogram. Parallel GM. Opposite angles of a parallelogram are equal. So put the values. A कितना है x, C कितना है y. अब हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी 130. तो in place of x we can put 130. So in this way we are able to get value of x and value of y. बट z बच गया. अब बेटा देखो, इसमें आप दो तरह से इसको वैल्यू को निकाल सकते हो. देखिए, जस्ट लुक एट द कॉन्सेप्ट जो आपने इन योर प्रीवियस क्लास किया हुआ है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन काटती है, जैसे ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इसको काट रही है, तो जो होते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हमेशा इक्वल होते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. या ऐसे लिख लो, जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा. तो हम यही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे. देखिए यहां पर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा z के इक्वल. या ऐसे कर लो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और AE ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x z के इक्वल हो जाएगा. चाहे जो भी ले लो आंसर सेम ही आएगा. सो कैसे करेंगे? सिंस लेट्स वी टेक दिस AD इज पैरेलल टू BC. क्यों? तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो पैरेलल होंगी. एंड AE इज द ट्रांसवर्सल. AE इज द ट्रांसवर्सल. AE इज द ट्रांसवर्सल. दिस वन. तो एंगल A दिस वाला x किसके इक्वल हो जाएगा? z के इक्वल हो जाएगा. इट मीन्स x इज इक्वल टू z. क्या रीजन होगा इसका? दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ बेटा, बाय द एग्जांपल. दैट इज, अगर ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल्स को बोलेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. जैसे ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल हो गया. सो हैंस अब x की वैल्यू हमें पता है क्या है 130. तो z भी कितना हो गया? 130 हो गया. इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. Students, in this parallelogram ABCD, we have to find the value of x, y and z where this angle is 30. So, अब इसमें हम यूज करेंगे different concept. Look here, this symbol stands for 90 degree. अगर कभी भी दो लाइंस के बीच में ऐसा लिखा हो, that stands for 90 degree. अब बेटा अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? ये भी 90 होगा. ये भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. In parallelogram ABCD, x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये जो है इसकी इक्वल हो जाएगा. क्यों? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मीन्स कोई भी अगर दो लाइंस आपस में काट रही हो तो इन दो एंगल्स को बोलते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जैसे ये लाइन इसको काट रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 90, तो ये भी 90 हो गया. दूसरी बात, अब अगर आप लेते हो ये ट्राइंगल, मान लो आप इस ट्राइंगल का नाम लिखते हो D, C और E. ये पॉइंट हो गया E इन ट्राइंगल DEC. बेटा हम इस पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पहले की थी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगल सम कितना होता है? 180. तो क्या बोलेंगे यहां पर? x प्लस y प्लस तीसरा एंगल कौन सा है? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180. विच कॉन्सेप्ट इज दिस? दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
इज इक्वल टू 180 डिग्री। नो बच्चों, पुट द वैल्यूज। हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, क्या 90 आ गई, प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 30 प्लस 90 इज 120, वाई प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो वाई कितना हो जाएगा, 180 minus 120, that is 60 degree. So in this way we are able to get y. y भी आ गया, x हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब कौन सा बच गया हमारा, z बच गया। तो बेटा बताओ इस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अभी की थी, मैंने आपको पीछे समझाया था कि अगर दो, ये पहला ही है इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सिंस ए बी is parallel to DC and BD is the transversal and BD is the transversal। ट्रांसवर्सल क्या होता है, द लाइन विच इंटरसेक्ट द टू लाइन्स। अब बेटा अगर ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल Y एंगल Z के इक्वल हो जाएगा, दैट इज Z इज इक्वल टू Y। इन्हें हम कौन सा एंगल नाम देंगे बेटा, देखो यहां से अगर ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, मान लो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, और अगर ये ट्रांसवर्सल काट रही है तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कब इक्वल होते हैं बेटा, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। अब पुट द वैल्यू, z तो z ही है, y की वैल्यू क्या निकाल दी हमने ऊपर 60, तो z इज इक्वल टू 60। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पैरेललोग्राम में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ओके